friends, today we are going to start a new chapter, chapter 1, power sharing, class 10th. So what is power sharing? I am going to give you small recaps in part 1 and part 2. Power sharing basically means sharing the authority, sharing your power among different sector of the government. What does basically different sector of the government mean? Like when we are in, let's see, we are in a group, and in that group there is a contest and everyone is voting, but you are not allowed to give or to cast your vote. That time you will feel neglected or discriminated because power isn't being shared with you. You are not given with that right that yes, you can also contest or you can also vote for a particular person or make your own candidate win. So that is power sharing. And when you are not allowed to have the equal rights or to have equal say in the decision making process, then that is known as discrimination of power sharing. And when you have the say or you have equal rights in power in making a decision, then it is known as power sharing. So we have two case studies in this chapter. So let us start with the first case study of Belgium. Okay, so Belgium is a small country in Europe. It is approximately areas is equal to Haryana. So you can think of how small country is it. Its capital is Brussels. So like India is full of diversity, Brussels also have variety of ethnic composition. First of all, what do you mean by ethnic? So ethnic is a social division based on shared culture. What is social division? Social division is when you are going to Bihar and then you are coming to Kerala. You will find that Kerala people are mingling with each other better in the Kerala state, whereas Bihar people are mingling or having a different connection with each other if they are in Bihar. Why? Because people have some similarities among themselves. They have similarities of festivals, language, maybe physical appearance, or sometimes even economical conditions also. Because when the state incomes varies, a person from Haryana may be rich, you can see a different type of attitude in it, and from a person of Arunachal Pradesh or any other state, I am not quoting any state, you will see some different you can see language, some different thought process of the people. And when we have more similarities than differences, we become together, we act as a group. So this is a division, we can say division, because if 100 people are there in a room and 50 are among themselves and 50 are different, then that is a division between 100 people. So the social division based on shared culture, when people have shared culture among themselves, they have common culture within themselves. Now एथनिक डाइवर्सिटी तो थी बेल्जियम में, लेकिन क्या थी एथनिक डाइवर्सिटी बेल्जियम में? बेल्जियम में बेसिकली जो बेल्जियम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था. एक था फ्लेमिश रीजन. तो आप ये ऊपर वाला रीजन देखेंगे, दिस इज द फ्लेमिश रीजन. मैं आपको इस मैप में दिखा देती हूँ एक मिनट. हाँ, दिस येलो वन इज द फ्लेमिश रीजन. The red one is the Wallonia region. The yellow one, you can see a mustard tinge of the smaller part. See, the smaller part is the capital Brussels. ठीक है ना. तो ऊपर फ्लेमिश रीजन है, नीचे वेलोन है. ये एक ही कंट्री. जैसे आप समझिए कि इस एक कंट्री को दो स्टेट्स में बांट दिया गया है, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन. और ये जो आपको लाइनिंग पार्ट दिख रही है ब्लू कलर की, दिस इज द पार्ट वेयर जर्मन पीपल नहीं बोलूंगी मैं, जहाँ पे जर्मन स्पीकर्स रहते थे. अब देखो, आप ये देखोगे कि क्यों स्पीकर मैंने बोला, क्योंकि देखो ये जो फ्लेमिश येलो कलर का रीजन है, यहाँ पे डच स्पीकर रहते थे. डच लैंग्वेज से ये इन्फ्लुएंस था. ये जो रेड वाला है, दिस इज फ्रेंच स्पीकर. यहाँ पे फ्रेंच के पीपल डोमिनेटिंग थे. और अभी हम ब्राजील की बात में करेंगे. लेकिन अब आप ये पूछोगे कि एक ही कंट्री में तीन अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज क्यों हो रही है? बिकॉज दिस कंट्री इज सराउंडेड बाय दीज कंट्रीज. सी, you can see when a country is surrounded by different types of country, we see the influence of other country on that country. So
Belgium is surrounded by Germany, Luxembourg, Netherlands, and France. These 4 countries are influencing on this country. तो देखो जर्मनी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ गया, जर्मनी हो गई. फ्रांस का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है, रेड वाले पे हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज. लक्समबर्ग और नीदरलैंड में क्या बोली जाती है, डच बोली जाती है. तो ये पूरा इन्फ्लुएंस हो गया. अब ये जो छोटा सा रीजन है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स इज द कैपिटल एज आई मेंशन्ड. ब्रसेल्स इज द कैपिटल. तो कैपिटल में थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है. देखो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं. आपको एरिया वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे होंगे, ये फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन. तो फ्लेमिश रीजन में क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द रीजन डच पीपल जो थे वो डोमिनेटिंग थे. ऑल ओवर द कंट्री में भी डच पीपल जो थे वो डोमिनेटिंग थे. 59% ऑफ पीपल जो थे वो डच थे एंड 40% पीपल आर फ्रेंच. सो आप देखो एक डोमिनेंस पावर जो होगी वो हम कह सकते हैं कि डच लोगों के पास थी. और जर्मनी कितनी थी, 1%. जर्मनी वॉज ओनली 1%. मीन्स देखो आप कितना शेडेड, कितना कम शेडेड पार्ट है, बिकॉज जर्मनी का जो इन्फ्लुएंस था वो कम था. तो डच का जो डच 59%, उसके बाद फ्रांस इज 49% एंड 59% नहीं, फ्रांस इज 40%, डच इज 59% एंड जर्मनी इज 1%. ओके, तो ये होल ओवर कंट्री का क्या कॉम्पोजिशन है ये मैंने आपको बताया. लेकिन ब्रसेल्स में कुछ अलग था. कैपिटल में द होल सिचुएशन वाज डिफरेंट. कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा डोमिनेटिंग थे, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे 80% थे, डच 20% थे. ऑल्दो कंट्री में हमने क्या देखा कि डच वॉज इन डोमिनेंस, कि 59% डच है और 40% फ्रांस है. फ्रांस है 1% जो है वो जर्मनी है. लेकिन ब्रसेल्स में 80% ऑफ फ्रेंच थे एंड 20% ऑफ डच थे. तो आप देखो एक मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि पूरी कंट्री तो डच से सराउंडेड है, लेकिन उसका अपना कैपिटल फ्रांस के पीपलों से सराउंडेड है. फ्रांस के पीपल नहीं बोलेंगे, फ्रांस के स्पीकर्स जो फ्रेंच स्पीकर है उनसे सराउंडेड है. ठीक है. अब देखो टू मेन रीजंस क्या थे हमारे पास, मतलब यहाँ पे लड़ाई क्यों हुई बेसिकली. तो 2 रीजंस देखो. सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. यहाँ पे जब एजुकेशन रिवॉल्यूशन आया, जब एजुकेशन इवॉल्व हुई, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो डच ऑल्दो वो डोमिनेंट थे, ऑल्दो वो मेजॉरिटी में थे होल ओवर कंट्री में, लेकिन उन्हें ये रिवॉल्यूशन, इसका जो फायदा है एजुकेशन का फायदा, ये इंडस्ट्रियलिज्म का फायदा जो उन्हें मिला, ये फ्रेंच से बहुत बाद में मिला. फ्रेंच को सबसे, फ्रेंच पीपल जो थे, उन फ्रेंच स्पीकर्स जो थे, दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, वेल्दी, बिकॉज दे हैड द पावर ऑफ they had the power of education, they had the power of industrial revolution, whereas Dutch people didn't have that much of power. So हम ये कह सकते हैं कि Dutch people, although being in majority, suffered, not because suffered, they were backward from French people. Now अब यहाँ पे रीजन क्या हुआ, रीजन ये था कि Dutch people claim that we are in majority but still we are backward. ठीक है. और फ्रेंच पीपल का क्या था कि वी आर पावरफुल, वी आर वेल्दी, स्टिल वी आर इन माइनॉरिटी. तो दोनों अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं. एक तो पहला रीजन ये था कि डच ऑल्दो इन मेजॉरिटी इन होल कंट्री वॉज इन माइनॉरिटी इन ब्रसेल्स, वेयर एज फ्रेंच वॉज इन माइनॉरिटी इन होल कंट्री बट इन मेजॉरिटी इन ब्रसेल्स. ये आपके 2 पॉइंट हो गए. तीसरा पॉइंट आपका क्या हुआ कि French people were more influential, powerful. French people were more influential and powerful, but they were in minority. But Dutch people were in majority, but they were less powerful and influential. So there was a atmosphere of distrust among people. लोगों के अंदर distrust, मतलब एक दूसरे के लिए उनके अंदर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सबको अपना जो एम्पायर था वो स्ट्रॉन्ग करना था. इसलिए ये टेंशन यहाँ पे हुई. तो हमें जो 4 मेजर रीजंस टेंशन के हमें जो पता चले वो ये थे कि डच वाज इन मेजॉरिटी इन होल कंट्री बट इट वाज माइनॉरिटी इन द ब्रसेल्स, वेयर एज
In Brussels, French was in majority, but it was a minority in whole country. French, although being minority, was more powerful and wealthy, whereas Dutch, being majority, was less powerful and less wealthy. There was an atmosphere of distrust which created a देखो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे which created war because यहाँ पे war नहीं हुई. This created a we can say atmosphere of war, atmosphere of tension. ठीक है. अब देखो ये सब हुआ तो ब्रसेल जो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मतलब जो हो रहा है होने दे. नहीं, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अबेंड किया. अबेंडमेंट का मतलब हमने पिछले साल 9th में देखा था, टू गिव अ चेंज. इंटरप्रेट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या इंटरप्रेट किया, 4 बार उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहा जिससे कि इक्वल राइट्स सबको मिले. और इक्वल राइट्स मिलने के लिए उन्होंने देखो क्या क्या किया. सबसे पहले ये जो 4-5 पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल. व्हाट बेल्जियम मॉडल इज द पॉलिटिकल बेल्जियम मॉडल विच गिव इक्वल राइट टू फ्रेंच स्पीकर एंड डच स्पीकर. तो हमारे पास जो मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है वो है देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच लैंग्वेज स्पीकर मिनिस्टर. मतलब फ्रेंच स्पीकर मिनिस्टर जितने होंगे उतने ही डच स्पीकर मिनिस्टर भी होंगे एक गवर्नमेंट में. गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट. तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि एनी डिसीजन कैन नॉट बी टेकन यूनिलैटरली. यूनिलैटरली मतलब किसी एक समुदाय के पक्ष में कोई भी हम लोग डिसीजन ना ले. दोनों की जब तक मेजॉरिटी, जैसे हमने देखा था पार्लियामेंट में, देयर शुड बी मेजॉरिटी फॉर अ डिसीजन. सो व्हेन all the language speaker would be there, they would raise their own interest. So when their interest would be risen, then no other, I can say, conflicting decision. Like if we say that Belgium is wanting to declare Dutch as an official language, then the German speaker or the French speaker would oppose this law. So it would not be taken unilaterally. एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होगा कोई भी डिसीजन. सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बात हो गई. स्टेट गवर्नमेंट में क्या चेंजेस किए गए, स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट बी द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी. इट वुड बी गिवन इट्स ओन न्यू पावर. ठीक है, उनको अपनी पावर दी गई ताकि वो अपने स्टेट को अच्छे से कैप्चर नहीं, अच्छे से उसे रूल कर सके. देखो सेंट्रल पावर ने एक रूल बनाया, लेकिन हो सकता है फ्लेमिश में थोड़ा सा उसके लिए ऑल्ट्रेशन की जरूरत है. तो फ्लेमिश की जो गवर्नमेंट है, फ्लेमिश की जो स्टेट गवर्नमेंट है फ्लेमिश रीजन की, उसको ये पावर दे दी गई कि हाँ अगर थोड़ा सा ऑल्टर अप करना चाहो तो यू कैन डू इट बिकॉज इट इज नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जो तीसरा उन्होंने रूल बनाया वो ये था कि ब्रसेल्स के लिए जो कैपिटल है उसके लिए अलग गवर्नमेंट बनेगी. अलग गवर्नमेंट का मतलब ये कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और एक ब्रसेल्स की गवर्नमेंट होगी जो ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पार्ट में कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे अलग रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे डिफरेंट है. वहाँ पे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ब्रसेल्स की एथनिक डाइवर्सिटी भी तो अलग थी ना. जहाँ पे डच पूरे कंट्री में फेमस है, पूरी कंट्री में डोमिनेंट है, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में है. तो डच में भी क्या किया गया, डच में भी यही किया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिस्टर्स. अब आप ये सोचो कि जो फ्रेंच के पीपल 80% है, वो क्यों मानेंगे कि सिर्फ 50% ऑफ मिनिस्टर वुड बी देयर इन अ पार्लियामेंट. तो उन लोगों ने ये इसलिए माना कि होल ओवर कंट्री में तो वो लोग माइनॉरिटी में थे और डच जो थे मेजॉरिटी में थे. पर डच इस बात के लिए मान गए कि फ्रेंच 50% स्टेक ले सकता है पार्लियामेंट में, इसलिए फ्रेंच पीपल भी मान गए कि ब्रसेल्स में ऑल्दो वी आर इन मेजॉरिटी बट वी आर गिविंग यू दिस लिबर्टी दैट यू कैन टेक 50% ऑफ स्टेक इन द पार्लियामेंट और इन द वी कैन से सीट्स. नाउ एक थर्ड टाइप की बहुत डिफरेंट गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई विच इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट.
Community government was a government which was elected by people of lingual state. People of lingual state मतलब वो उन लोगों से, जैसे एक तो आपका जनरल इलेक्शन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, आपका ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के जैसे जर्मन स्पीकर अपनी कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेंच पीपल अपने कुछ लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे और वो मिलकर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके एजुकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकती है, आपके कल्चर डिस्प्यूट्स को ठीक करेगी, आपके लैंग्वेज डिस्प्यूट्स को ठीक करेगी। तो वो कम्युनिटी कल्चर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट करती थी। तो ये 4 हमारे पास बेल्जियम मॉडल के फीचर्स है जो कि 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब इन सब का आप बोलोगे कि क्या विक्ट्री हुई इससे, तो विक्ट्री का जो हमारे पास साइन है वो ये है कि ब्रसल्स में आज यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई क्या यूरोपियन यूनियन कभी अपना हेडक्वार्टर कोई ऐसी जगह बनाएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है या फिर यूनिटी नहीं है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध के माहौल रहते हो, नहीं। वो हमेशा अपना हेडक्वार्टर वहाँ बनाएगी जो एक पीसफुल कंट्री हैविंग अ स्मूथ इकोनॉमी। दैट मीन्स यस देयर वाज अ विक्ट्री because of the recognition of different cultural divisions in the country and taking appropriate measures against it. ठीक है, this is the victory. Now, अब देखो श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका हमारी एकदम देखो छोटी वाली कंट्री साइड में, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या हुआ, देखो श्रीलंका हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। हम 1947 में हुए थे, वो 1948 में हुआ था, जस्ट गैप ऑफ 1 ईयर। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में भी 2 कम्युनिटीज थी। एक थी सिन्हाला गवर्नमेंट नहीं, एक थी सिन्हाला कम्युनिटी और एक थी तमिल कम्युनिटी। देखो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी डोमिनेंस में थी। 74% जो हमारे पास 74% ऑफ पॉपुलेशन वाज सिन्हाला, whereas 18% ऑफ द पॉपुलेशन वाज तमिल। तमिल में देखो 2 पार्ट्स है, सब डिविजन्स है। एक तो श्रीलंकन तमिल्स जो तमिल थे बट वो श्रीलंका के थे, वो नेटिव्स थे वहां के, और कुछ तो ऐसे तमिल्स जिनके 4 फादर या फिर जिनकी जो डायनेस्टी है वो इंडिया से बिलोंग करती थी। अब आप पूछोगे इंडिया से कैसे बिलोंग करती थी, तो देखो ब्रिटिशर्स हमारे टाइम पे यहाँ से वर्कर्स उठा के लेके जाते थे, दूसरी कंट्रीज में उन्हें ट्रांसपोर्ट करते थे और वहीं पे वो लोग बस जाते थे। तो हमारी जो जनरेशन है ये कई डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे फैली हुई है ना। और आप देखो सब ट्रॉपिकल रीजन पर है श्रीलंका, वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए इंडियन से, और तमिलनाडु वॉज वेरी नियर, तो तमिलनाडु से जितने लोगों को लेके गए एज अ वर्कर वो वहीं बस गए और फिर उन्हें इंडियन तमिलियंस कहा जाने लगा। और जो तमिल वहीं के थे जो सिर्फ लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि हमने देखा बेल्जियम लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस था, वैसे ही जो लोग तमिल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस थे पर वो थे श्रीलंका के, उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। और जो इंडिया जिनके whose 4 फादर बिलोंग टू इंडियंस, उन्हें कहा गया इंडियन तमिल। नाउ इसके लिए एक और टर्म ले लो, नेटिव तमिल्स जो वहीं के थे और नॉन नेटिव तमिल्स। तो नेटिव तमिल्स 13% थे एंड नॉन नेटिव तमिल्स जो थे वो आपको 7 to 8% थे, 6% थे, नॉट 7 to 8, 6% थे। ठीक है, अब देखो श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, वी कैन सी वेरी स्मॉल कंट्री, और इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ जस्ट सेम एज दिल्ली एंड हरियाणा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी इस छोटी सी कंट्री को भी मैनेज नहीं कर पाए, बिकॉज सिन्हाला वांटेड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द कंट्री। वो अपनी सुपरमेसी चाहता था कंट्री पे, सिन्हाला गवर्नमेंट, बाय द वर्च्यू ऑफ majoritarianism. What is majoritarianism? Majoritarianism is an ideology which prefers the rule of majority over the country over minority, which has the ideology of first right to majority. First right to majority means it's an ideology जो कि ये कहती है कि पहला राइट मेजॉरिटी को जाएगा, मेजॉरिटी इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो वहां पे उन लोगों ने मेजॉरिटेरियनिज्म जो था वो रूल आउट किया था, ये हमें मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो करना है।
अब वहाँ की एथनिक डाइवर्सिटी तो आपने देखा 14%, 18%। देखो 7% यहाँ पे ऐसे भी थे जो क्रिश्चियंस थे और तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। ठीक है, सिन्हाला थे, क्रिश्चियन थे और तमिल स्पीकर्स थे। अब देखो ये लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? तमिल यूज टू कौन सा रिलीजन सिन्हाला फॉलो करते थे? दे यूज टू फॉलो बुद्धिस्ट रिलीजन। तो अब इन लोगों ने अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1956 एक्ट ऑफ 1956 पास किया, जिससे उन्होंने ये कहा कि सिन्हाला वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब आप बताओ, अगर हम इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बता देते हैं तो जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, या हमने उनकी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड नहीं दिया? जो लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ है, और वी कैन से इंग्लिश तो खैर हमारी नहीं है, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अगर हमने कहा हिंदी इज फर्स्ट, देन ऑब्वियसली उन लोगों की लैंग्वेज में भी तो डिसरिगार्ड गया। दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिडरिंग देम एज अ पार्ट ऑफ योर कंट्री। तो 1956 में उन्होंने कहा कि सिन्हाला इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ये फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर, गवर्नमेंट यूज टू फॉलो सम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का क्या मतलब है? प्रेफर करना, मतलब किसी को ज्यादा अहमियत देना। तो वो लोग सिन्हालास को ज्यादा अहमियत देते थे। किस मामले में? देखो, दे यूज टू प्रेफर द एप्लीकेंट्स ऑफ सिन्हाला एप्लीकेंट्स इन यूनिवर्सिटी एंड जॉब पोजीशंस। मतलब कभी भी कोई अगर यूनिवर्सिटी की कोई जॉब निकलती थी, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी थी, तो वहाँ पे सबसे पहले तमिल को ऑप्शन दिया जाता था कि भाई सबसे पहले सिन्हाला को ऑप्शन दिया जाता था कि भाई अगर आप सिन्हाला हो तो आपका फर्स्ट राइट है इस जॉब पे। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वहाँ पे। और तीसरा पॉइंट जो था, न्यू स्टाइपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉस्टर्ड बुद्धिज्म एंड फेवर्ड सिन्हाला। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कहता था कि हम सिन्हाला लैंग्वेज और बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रेफर करते हैं, हम उसी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब जो लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो तमिल बोलते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है उस कंट्री में। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर अब आपसे अगर ये पूछा जाए व्हाट वर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो सबसे पहले आप लिखोगे फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1956 वाज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग तमिल स्पीकर्स। एलियनेशन मीन मतलब उनको अकेला फील हो रहा था, उनको डिसरिगार्डेड, डिस्क्रिमिनेटेड, छटकाया हुआ सा फील हो रहा था कि हमें तो हटा ही दिया है। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन ग्रो अमंग तमिल पीपल। और जो तीसरा पॉइंट होगा, दे थॉट दैट नो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय सिन्हाला बुद्धिस्ट पीपल was sensitive towards their culture और language। मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ऑब्वियसली बुद्धिस्ट पीपल वहाँ पे ज्यादा थे, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो जिन्हें सिन्हाला लीड करते थे, वो तमिल के इश्यूज पर, तमिल लैंग्वेज, उनके कल्चर पर बिल्कुल इनसेंसिटिव थे, उनकी डिमांड्स रेज नहीं करना चाहते थे। और जो चौथी पॉइंट आप ये लिखोगे, देयर वाज नो इक्वालिटी, नो राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वहां पे। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब उनकी डिमांड्स क्या हुई? तमिल की सबसे पहले क्या डिमांड होगी? डिक्लेरेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। मतलब तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब आपकी जो पार्टीज है वो तो हमारे इश्यूज को उठा नहीं रही, तो हमें ऑटोनॉमी दो कि हम अपने इश्यूज, हमारे को अथॉरिटी दो, पावर दो। दूसरी ये हो गई। तीसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन फील्ड, इन जॉब, करियर वाइज, मतलब ऐसा हमारी काबिलियत पे हमें जज करो, नॉट ऑन द बेसिस दैट वी स्पीक तमिल और वी आर नॉट सिन्हालास। सो ये उनकी डिमांड होगी। लेकिन इस डिमांड में से कोई भी डिमांड सिन्हाला गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से लेट 20th सेंचुरी में पार्टीज, वहां पे तमिल पार्टीज बननी शुरू हो गई थी। और तमिल पार्टीज वर नाउ वांटिंग देयर इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम इज अ वर्ड इन तमिल विच मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट। अब उन्हें कहा कि हमें नहीं रहना है श्रीलंका में, हमें नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, ये जो ब्लू से देख रहे हो ना आप, ये वाला देखो रीजन, ये वाला नहीं, रुको एक मिनट,
हाँ ये जो ब्लू वाला ही है, नॉर्थ ईस्टर्न हमें अपनी कंट्री अलग करके दे दो, वी वांट आवर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसी की वजह से वहां पे सिविल वॉर हुई थी, ठीक है। और सिविल वॉर वहां पे चली थी, मतलब 7 to 8 9 ईयर्स के लिए वहां पे सिविल वॉर चली थी। और उसके बाद जाके वहां पे सिविल वॉर अभी 2009 में आई थिंक एंड हुई है। यस हाँ, 2009 में ही एंड हुई है। अब क्या दिक्कतें थी, सिविल वॉर्स क्यों हुई है तो आपको पता चल गया। लेकिन अब सिविल वॉर्स का भी तो मतलब कोई, ये देखिए, there were no thousands of the communities from both communities were killed। यहाँ पे एक आपको लाइन बहुत अच्छी मिलेगी आपकी बुक में, that tyranny of majority does not only affect minority but also affects majority। उसके एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो कि thousands of the people from both the community were killed, many people had to leave their houses as refugees, there were loss of livelihoods। आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि श्रीलंका इज अबव इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, बट इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और ह्यूमन डेवलपमेंट से वो बहुत नीचे गिर गया था जब सिविल वॉर हुई थी वहां पे। देख रहे हो? अब आपने देखा कैसे बेल्जियम में अपने, जब उसने कल्चरल डाइवर्सिटी को अपनी ताकत बना के वहां का उसके लिए सही मेजर्स लिए, तो वो कंट्री आज कैसे यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर है वहां पे। और यहाँ एक कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इतनी अच्छी थी बट अपने सिविल वॉर मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से वो इतने ज्यादा पिछड़ गई। तो इसी से हम कहते हैं कि वाई, यहीं पे एक टॉपिक आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये आपको पूरा एक जिस्ट है, आपको बहुत पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। लेकिन इसके हम जो प्रॉपर डिस्कशन है वो अगले पार्ट में करेंगे। इस केस स्टडीज के मेन पॉइंट्स हमने सारे देख लिए हैं और हमने बेसिकली ये समझ लिया कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, वेरी मच नेसेसरी फॉर द पीस एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। बट नाउ वाई, व्हाट आर द रीजंस, बेसिक 2 रीजंस जो हमें अगले क्लास में डिस्कस करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। Kindly like and share and subscribe to my channel.